Yes. Hello guys, good evening. Welcome back to Mardarshan by ITS. So guys, first of all, I would like to congratulate for being shortlisted for IOCL interviews. Guys, this is a महारत्न बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों को एक महारत्न में ज्वाइन करने के लिए। अब गाइस यहाँ पे आप लोग इसलिए प्रेजेंट है ताकि आप लोग इंटरव्यू को निकाल सके, आप लोग ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क में इजीली क्लियर कर पाए। नेक्स्ट थिंग गाइस, सो चलिए हम लोग जीडी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लेने वाले हैं एंड द टॉपिक फॉर टुडेस ग्रुप डिस्कशन विल बी फ्रॉम द लेटेस्ट जीडी पैटर्न, लेटेस्ट जीडी क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड यस्टरडे। यस्टरडे आई हैव मेंशन्ड, एक वीडियो बना दिया था मैंने, उसमें टॉपिक का नाम भी आप लोगों को बता दिया था, तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं जानी चाहिए। ओके, सो गाइस द टॉपिक फॉर टुडेस ग्रुप डिस्कशन इज द टॉपिक फॉर टुडेस ग्रुप डिस्कशन इज So the topic for today's group discussion is, as you can see, the population of India is growing. As the population of India is growing, so is it a demographic dividend or time bomb? So is it a demographic dividend or a time bomb? Are you clear? Have you wrote down? Yes, sir. Yes. So you will be getting total of 3 minutes, 3 to 5 minutes to think, and then after that we will be starting the group discussion.
Are you clear of the topic, guys? First of all, हाँ सर. सिर्फ यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज किया गया है, बाकी सारा का सारा जो आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 वर्ड्स, द ग्रोइंग पॉपुलेशन. Here the word demographic dividend refers to pros and the word time bomb refers to the cons of discussion. क्या बोला सर आपने? Pros. Yes, pros. The word demographic dividend refers to the pros and the time bomb refers to the cons of the group discussion. I hope is it clear to all of you now? Yes. So दीपक, मैं आपको बता देता हूँ आज का जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है. The topic for group discussion today is, as you can see, the population of India is growing rapidly. So discuss, is it a demographic dividend or a time bomb? So discuss, is it a demographic dividend or a time bomb? Time bomb, where demographic dividend refers to pros and time bomb refers to cons. Okay, sir. Okay. कल यहाँ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ा टॉपिक में, टॉपिक को थोड़ा सा सिर्फ वर्ड चेंज हो गया, उनको समझ में नहीं आया कि बोलना क्या है करके हमें. ये टाइम बॉम्ब क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है. ओके, आज के ग्रुप डिस्कशन पे मैं आपको बता दूंगा. Okay, सर. आज के जो जीडी टॉपिक्स रहेगा उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम को. ओके, और किस हो गया? so yes guys, total of 5 minutes have been over, so you can please start and proceed to the discussion. Hi everyone. Hello, friends. Today's topic is, as Good morning. population of India is increasing, बोल भाई. is it a demographic dividend or a time bomb? As a demographic dividend, we know that is a process of keeping the structured form so that we can use. Hello, am I audible? Yes, you're right. Yes, yes. Okay, so it's the time bomb or it is a alarming or not, because we are going to face that situation where there's where there's a decrease in employment. So today we will discuss about the pros and cons of increasing population in India, and also what steps should we and also government can take so that we can control or make that population useful for growth of India. जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे पास क्या है, पूल है वर्क फोर्स का, यंग फोर्स का, जो कि 20 से लेके 35 साल तक के बीच रेंज करता है, जो कि वर्ल्ड में सबसे अच्छा है हमारे लिए. कोई जापान वगैरह के देखे, वो क्या हो रहा है विद टाइम, उनकी जो पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है. पर इंडिया के पास ये अच्छा मौका है कि जो हमारी वर्क फोर्स का हम यूज कर सकते हैं अपनी, हमें सही डायरेक्शन उसे देनी पड़ेगी बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब. If you're not going to provide the required and necessity for development of, sorry, I'm audible? Yes, yes. Yes, you Yes, are sir. audible. Yes. तो जो हमारे पास ये वर्क फोर्स का जो पूल है, ये वर्ल्ड में हमारे पास है. एवरेज एज अभी बहुत यंग है, जिसको हम बहुत जुडिशली यूज कर सकते हैं अपनी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए. कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगा सब लोग अपना व्यू शेयर करें.
I agree with you, Vijay. Hello, friends. Uh, Our topic is in India's increasing population is a demographic dividend or time bomb. Moreover, I will be in the favor of it is a time bomb for us. There are certain points in the favor of this fact, like number one, limited availability of source. जैसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन आज के टाइम पे एक लिमिट से ज्यादा रेट से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है डाटा के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो लाइफ में इंडिया में लाइफ होगी वो बहुत हार्श हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ पीपल्स विल बी जॉबलेस। ओके, एंड अगर हम एक एग्जांपल देखें इजराइल का, तो इजराइल में क्या हुआ था कि जॉबलेस पीपल के ज्यादा होने की वजह से वहां पे इंटर कंट्री वॉर हो गया था। तो ऐसा फ्यूचर में इंडिया में भी पॉसिबल है कि अगर मोर नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, उनके पास लाइफ जीने के लिए सोर्सेज नहीं होंगे इजीली, तो वो फिर एक दूसरे से लाइक रॉबरी टाइप की चीजें क्रिएट करेंगे। नंबर अब इसके I think सॉल्यूशन As I के would लिए हम like क्या to कर सकते address हैं? a different point of view here. I think I have a different What? point of view here. Indian population growing at a very vast rate. It will be a demographic dividend or a time bomb. It all depends on how we manage it. Like yes, China I Correct, Saket. is yes, having a very yes, high population, yes, but Santosh. they are I managing it I am very agree. clearly. If very large population, if we use it to our advantage, it can be useful in many ways. But if the whole population is increasing, which does not have any skills, which is not ready to work, which is illiterate, which is without a job, then it will be a difficult thing for India. But if we educate it well, if we use it and use the resources to the best of the extent, then it will be a demographic dividend. And I think India as a growth country, it will lead towards a demographic dividend. Look, I there agree with is you, one Santosh, point I can say but that there population of India is increasing, right? And it can be the demographic dividend. We can say that we know that in India, as a government of India, signing many pacts with the different countries like Taiwan, they have to send the workforce there so that they can work there and send money in India so that our currency becomes strong. It's very beneficial for economy also. And if we in future skilled our workforce like our young people, and then we can definitely make them beneficial for our India. As we have the example like China, they make their personal skills such as that they are now world leader exporter, world leader exporter in world, we can say that. And every company are now putting their industry in China. We have seen that. So it is the best. China is the best example that how to we use our population for our growth. We have that example, I think. हाँ, कोशिश मैं I यहाँ इसकी agree. ये पे I बोलना agree with you, numbers Vipin. matter If we, when it जैसे comes to कि yeah, in my opinion also, numbers to defense. हम in my opinion इसका यूज also, करते हैं कि the जितने growing ज्यादा नंबर population of होंगे, क्या India होगा, बाहर is the अदर कंट्री हमें सबड्यू नहीं करेगा, तो नंबर तो कोई भी कंट्री हमको मतलब सबड्यू करने की कोशिश करेगा, हम पे एग्रेशन नहीं दिखाएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का, एक प्लस पॉइंट है इसका ये। मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे बोलना चाहते बोल रहे हैं बढ़ेगा इंडिया का, हमें देखना पड़ेगा कि अभी के हालात भी देख सकते हैं कि बहुत सारा फूड शॉर्टेज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे और किसी ने बोला था कि ये जो ब्रेन ड्रेन की बात की, बाहर जाके अगर हम कुछ मतलब वहां बाहर जाके जॉब करें और उधर से पैसे भेजे, इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे लोग बाहर ही चले जाएंगे, क्योंकि मोस्टली बाहर के लोग अच्छे लोगों को प्रेफर करते हैं, फिर इंडिया में भी जो मेंटालिटी चाहिए और जो दिमाग चाहिए इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा लाइक अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हो सके तो दो से ज्यादा किड्स ना करें, या कुछ पॉलिसी बनाए जैसे कि चाइना के पास है, लाइक 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये सब हम बना सकते हैं, जिससे कि और अभी हम देखते हैं कि जब भी कभी भी कहीं भी ट्रेन में, बस में बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो हर जगह रश रहती है, तो ये सब ऑब्वियसली ये बहुत
सही नहीं है हमारे देश के लिए। जैसे जैसे और ऐसे भी इंडिया 2031 तक लाइक चाइना को सरपास कर देगा ये पॉपुलेशन के मामले में। जैसा आप कह रहे हो बात सही है तो दीपक, हमें लेकिन there are टू चाइल्ड always पॉलिसी या वन two चाइल्ड sides Yes, of पॉलिसी the Dheeraj, coin. चाहिए जो wait, चाइना wait, के wait, चाइना Vijay. Can you Dheeraj. wait? Guys, Dheeraj को बोलने Dheeraj. दीजिए, Dheeraj को। let's speak. Yeah, I Dheeraj. agree with you, Bipin, but there are always two sides of coin. If you are considering growing population is a time bomb, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन का हमें सही यूज़ करना आता है तो उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है. इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड जापान, देयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम. जहाँ साउथ अफ्रीका अंडर डेवलप्ड है, उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है. और वहीं सामने जापान है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उन्हें अपनी पॉपुलेशन का यूज़ करना अच्छे से आता है. So I I will am add also in one favor point of in the okay. I will add one point in the Dheeraj point. Like we are talking about कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या जो डेवलपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा. लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो. जापान और अफ्रीका, जापान के पास जो रिसोर्सेज हैं वो जिस हिसाब से काम कर सकते हैं उस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन को वो मैनेज कर रहे हैं. हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो लिमिट से ओवर रेट से इंक्रीज हो रही है. तो उस चीज को मैं कह रहा हूं कि जो इंडिया पॉपुलेशन है वो टाइम बॉम्ब है. अगर हम एक रेशियो देखें कि अगर उस चीज को मैनेज कर पाए, या तो हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा दें बाय अप्लाइंग सम गवर्नमेंट पॉलिसीज, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट इजी इन इंडिया. दूसरे कंट्रीज में जापान जैसे मैं बात कर सकता, बट इंडिया में ये इजी नहीं होगा क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रही है. तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो दीपक सिंह ने मेंशन किया था कि जो नंबर ऑफ चाइल्ड है वो लिमिटेड की पॉलिसी इंडिया में लाई जाए. उससे क्या होगा, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सारे लाइक नंबर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज एजुकेशन. तो अगर हमारे पास लिमिटेड पॉपुलेशन है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे और एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट कर सकेंगे. संतोष, ये मुझे बात तो लगता है सही है कि कि इंडिया जो हमें है, पॉलिसी इसका बनानी GDP पड़ेगी कंट्रोल continuously करने के grow लिए. कर रहा है. पर अगर हम चाइना देखें तो चाइना ने यही पॉलिसी फॉलो की थी जिसके वजह से आज वो फेस कर रहे हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का. तो हाँ, हमें करना है, पर हमें एक क्या बोलते हैं जुडिशियल मैनर में करना है. Exactly, हम चाइना की तरह हम नहीं चाहते कि चाइना की तरह हम वही चीज़ फेस Correct, करें. Vijay. फिर हम अब चाइना ने स्टार्ट कर दिया है कि अब पहले सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उसने अलाउ कर दिया टू चाइल्ड पॉलिसी. पर हमें भी ये चाहिए, पर हमें एक जुडिशियल मैनर में करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान रखते हुए. हम सडनली सीधा हम जंप नहीं कर सकते हमें सीधा वन ऑप्टिमिस्टिक चाइल्ड अप्रोच पॉलिसी को पे. फॉलो करना पड़ेगा. अगर हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे तो ही हमें पता लगेगा. हम देख सकते हैं कि इंडिया का जीडीपी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है. जैसा कि बात आ रही है कि रिसोर्सेज उतने हैं कि नहीं है. रिसोर्सेज कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड. रिसोर्सेज मैन पावर से ही इंक्लूडेड है. अगर हम प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर मैन पावर को लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम उन्हें प्रॉपर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्सेज कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड. ये प्रॉपर एक पॉजिटिव आउटफॉर्म की तरफ अगर हम चलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की तरफ चलेंगे, तो आर पॉपुलेशन इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. और हम देख सकते हैं कि ये हमें हेल्प ही कर रहा है. आज ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण ही इंडिया के अंदर तो इतनी ग्रोथ हो ही रही है. इनफैक्ट आप अदर कंट्रीज देखिए जहां बाहर इंडियंस जा रहे हैं, जहां पर मैं काम कर रहे हैं, वहां पर मैं इंडिया का कितना नाम हो रहा है. इट इज आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं सब इंडियन है. दैट इज बिकॉज इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो लोग बाहर भी जा रहे हैं. और तो यहाँ पर मैं भी अच्छा काम करता हूँ. मैं भी इस बात से मैं भी साकेत से एग्री करता हूँ. उन्होंने अच्छा पॉइंट दिखाया कि जैसे पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है तो यहाँ पे एक जो कंपटीशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमें बेस्ट टैलेंट मिलेगा इंडिया में और उसका यूज करके हम जो हमारी इकोनॉमी है उसमें अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं. और मैं धीरज की बात से एग्री करता थोड़ा हूँ. सा जैसे हमारी ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा प्रो ये है कि हम जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं उनकी लिस्ट में थर्ड लिस्ट पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ हमारी ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से हुआ है. जो मतलब यूथ है हमारा, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ है. हम मतलब जो नंबर ऑफ स्टार्टअप, नंबर ऑफ इनोवेशंस हैं, उनमें हम तीसरी लिस्ट में आ गए हैं वर्ल्ड की. तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करते हैं, अपने जो यूथ हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, उन्हें चांस देते हैं अच्छा करने का, तो हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके कई सारे मतलब उसको हम एज ए एडवांटेज यूज कर सकते हैं. और दूसरा मैं गुरु को एक ध्यान ले जाना चाहूँगा एक पॉइंट पे कि किस वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे आता है. किस चीज़ में? बाहर देश से जो भी हम फॉरेन करेंसी है रिजर्व हमारा बढ़ रहा है. ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का ही फायदा तो है. इसका ही नतीजा है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बाहर देश जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ से फॉरेन करेंसी इंडिया में लाते हैं. इसी इंडिया में फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है.
ये इसका एक मैं मैं अपना एक पॉइंट ओपिनियन रखना चाहूंगा कि जो अपना जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो अपनी इंडिया के लिए ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम देख सकते हैं जैसे जैसे अब इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जो कंपनीज पहले इंडिया में इन्वेस्ट करने की नहीं सोचती थी, धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गई। धीरे धीरे जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बूस्ट करेगा, क्योंकि वो उनको जो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के लिए नंबर ऑफ पीपल्स की स्किल्स पीपल्स की जरूरत होती है। एज ए ग्रोइंग जो पीपल जो अपनी पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, तो एज ए नंबर ऑफ जो स्किल्स पीपल्स है वो भी इंक्रीज करेंगे। एज ए नंबर ऑफ पीपल्स विल मोर गेन द एजुकेशन। फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि जैसे पहले एप्पल कंपनी थी वो इंडिया में नहीं थी, बट अभी इंडिया के अंदर 4 स्टोर पर एप्पल खोल चुके हैं। वहां से ना हम जो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो होने का फायदा एक ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगी धीरे धीरे। बट इट्स कि अपन को सोचना चाहिए थोड़ा सा विजन के साथ कि हाँ कि नंबर ऑफ कंपनीज को अप्रोच ज्यादा करना चाहिए कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, कि वी हैव नंबर ऑफ ऐसे रिसोर्सेज ज्यादा है हमारे पास एज ए पीपल्स, कि आपके नंबर ऑफ जो लेबर्स या फिर आई विल से कि नंबर ऑफ द जो वर्कर्स चाहिए वो आपको सफिशिएंटली मिल जाएंगे एज ए प्रॉपर मैनर एंड स्किल्ड पीपल्स। मैं यहाँ पे I am also agree with this point, as the manufacturing is the important factor of any economic growth. So if the company shifts from China to India because of cheap labors, so यहाँ पे growth का opportunities बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे जैसे population बढ़ेगी इंडिया की उससे यहाँ पे cheap labors मिलेंगे। तो जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल हो गई एंड टेस्ला हो गई और भी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं फिर और दूसरे की इंडस्ट्री की कंपनी है वो इंडिया में शिफ्ट होंगी, और जिससे इंडिया को फायदा होगा। मेरा मानना है कि जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के जो मतलब जो नुकसान भी हैं हमें उनकी तरफ भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कम लोगों को मिलेगी, जिससे काफी लोग सफर करेंगे। तो हमें मतलब हमारी पॉलिसीज इनकी तरफ मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ भी होनी चाहिए, जिससे बैलेंस हो सके इनोवेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों में। Yes, stand on the point that India's growing population is a demographic dividend. लाइक 90% लोग हैं जो 25,000 से कम रुपए में भी अपना कर रहे हैं। जो हमारा अभी डेटा आया था उसके हिसाब से ये है कि 90% लोग जो अंडर 25,000 काम करते हैं। तो ऐसा मतलब ये, और हमारे जो भी अभी हम देख सकते हैं कि जो इंडिया थी जो पुअरेस्ट कंट्री के लिस्ट में लाइक सबसे लास्ट 10 में आती थी। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे से हमारी दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी, लोग और गरीब होते जाएंगे। तो ये बहुत सही नहीं है। जैसे जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा, रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, हम अपने रिसोर्स बढ़ा नहीं सकते अब। और ये किसी ने बोला था कि जो टेस्ला है वो इंडिया आ रही है, चाहे एप्पल इंडिया आ रही है, वो तो किसी भी देश में जा सकती है, उसका वो नहीं कि वहाँ पे। और यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे देश की जो 90% जो पैसे हैं वो बस 10% लोगों के पास है, बाकी पूरी 90% जनता ऐसे लाइक अंडर 25,000 में जी रही। I would like to bring a point that India population is mainly concentrated in some regions like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai because of some jobs. तो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अभी भी कम है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उन रीजन्स में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकती है, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नया स्कीम ला सकती है जिससे पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कंट्री में। एंड एक एडवांटेज हमारी जो ओवर पॉपुलेशन का ये भी है कि इंडिया जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकती है प्रॉपर एजुकेशन के साथ। लेकिन as much as I stand on the point that it is demographic dividend, I would also like to say that there must be a proper education कि we should not have more than 2 or 3 kids. Like हम properly इसको as a law हमको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने चाइना के अंदर देखा है कि इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, यूथ पॉपुलेशन बहुत कम हो जा रही है एक साथ। तो हम एजुकेशन लाइन, दैट इज अ गुड थिंग। आप अगर देखें, आपके पेरेंट्स को देखें तो आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स सब 5-6 भाई होंगे, लेकिन आप लोग अभी 2 या 3 भाई बहन हैं। आप और फ्यूचर के जाएंगे तो ये एजुकेशन के कारण हो रहा है। तो आप जितना ज्यादा एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे उतना ज्यादा इट इज अ बेटर थिंग, बट टू एम्प्लॉय अ लॉ इट इज अ बैड थिंग। ओके, सो और जितना भी हमारी बात हो रही है कि 90% का जो अमाउंट है वो 10% पॉपुलेशन के पास है, तो ये मोस्टली कंपनीज में स्टार्टिंग पोजीशन में डेवलपिंग स्टेज में होता है। जब कंट्री एक डेवलप्ड स्टेज की तरफ जाने लगती है तो ये मनी इक्वली डिवाइड होता है, क्योंकि एजुकेशन इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि ये चीज डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा विद प्रॉपर एफर्ट, प्रॉपर ऑप्टिमिज्म एंड प्रॉपर एजुकेशन।
साकिब हम लोग अगर थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें, लाइक हम लोग को थोड़ा सा अगर मेजर्स अगर गवर्नमेंट ले साथ में, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी इंडिया में आए, तो हम लोग पॉलिसी फोर्स नहीं करना ऑन द पॉपुलेशन। वी हैव टू मार्केट दैट कि आप पॉपुलेशन खुद कंट्रोल कीजिए। इंडिया में अवेयरनेस लाना इसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई पॉपुलेशन वी कैन ओनली एंड ओनली कंट्रोल जब पीपल में अवेयरनेस हो कि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल किया जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इन फ्यूचर हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा भी है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, बहुत कम हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग अप्रोच रह सकता है। I will add one point, like क्यों गवर्नमेंट पॉलिसी जरूरी है इस चीज के लिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। वन ऑफ आवर कम्युनिटी इन इंडिया, उसकी सोच इस तरीके की है कि अगर वो वोट बैंक बढ़ा लेंगे तो इंडिया में अपना एग्जिस्टेंस शो करेंगे। तो उस टाइप की कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा जरूरी है। मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज को लिंक कर पा रहे होंगे। दे आर नॉट रिलेटिंग दिस विद एजुकेशन, दे जस्ट रिलेटिंग इट विद वोट बैंक। नहीं आप टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है भाई टॉपिक से, ये थोड़ा सा जो है ना। आई एम मेंशनिंग अबाउट क्यों गवर्नमेंट पॉलिसी जरूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। जो हमने मेंशन किया था ना पॉइंट कि 2 और 3 चिल्ड्रंस वाली पॉलिसी लानी चाहिए। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, और हो सकता है तो कुछ ऐसा स्कीम निकाल दे जैसे कि अगर किसी के 1 या 2 बच्चे हैं तो उनका कुछ लाइक 10th तक 5th तक आप फ्री एजुकेशन दे दें, तो इससे भी लोग थोड़ा ले रहेंगे कि ठीक है 10वीं तक अगर बच्चे को फ्री में मिलती है तो हम 2 ही बच्चे करते हैं। इस वे में भी लोग सोच सकते हैं। लाइक एक इसमें ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर I can कोई भी convey. 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में हम उसे मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह से That's अलाउ the ना one करें thing. अपेयर That's the होने one के thing. लिए। नहीं एक और चीज ये है, मुझे इंडिया में अगर देखा जाए तो अगर कोई भी एक मोस्टली नेगेटिव जो होते हैं जॉब के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। Okay guys, Vijay Singh is mentioning. okay guys, Suraj, is there any point you want to add? आई वांट टू से डेट कि आवर टॉपिक है कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, वो बेनिफिशियल है नॉट बेनिफिशियल। अब आप टॉपिक से ऊपर डाइवर्ट हो चुके हैं कि अब कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए कौन सी नहीं बनानी चाहिए। मेरा पॉइंट सर ये है कि जो अपना गवर्नमेंट है तो अपने को ऐसा होना चाहिए जैसे कि एजुकेशन पे फोकस रखना चाहिए। जो मेनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि पॉपुलेशन ग्रोइंग है वो इंडिया के लिए मतलब कि कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा जो अपना मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनको कैप्चर करने के लिए, और साथ में जो अपना वर्क लेबर है वो जो बाहर जाता है जो अर्निंग करता है वो बाहर से आता है, उससे जो इंडिया की जो करेंसी बढ़ती है, इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, उसमें बेनिफिशियल होता है। साथ में हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने इंडिया में एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट कर सके हर स्टूडेंट को, और बेटर एजुकेशन होनी चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। I agree with you. As we all know that do you have any excessive point? anything is Wait, Dheeraj. Ranjit, Okay, do you have okay, any sure. point? I think so. Ranjit network is not good. Yes, Dheeraj, you were saying something. Please go on. I agree with you, but as we know that excessive of anything is bad, so government should plan properly. So to limit the population is good for our country. So Conclude, उनको guys. पता है कि कितने resources इंडिया में। Conclude. Conclude the topic, guys. Okay, so I would like to take this opportunity to conclude today's topic. So today we have discussed on the topic that population of India is growing. So it is a demographic dividend or time bomb. And we have presented very beautiful points on both the sides. On demographic dividends, we have presented the points that as the population is increasing, our labor work is increasing, our people increasing. So intelligent people will be there. More people will be going out of the country with country's name, so that is also beneficial. More innovations will be there, more startups will be there, and as growing population will become a very good power. And in the place of time bomb, there are points like resources will get short, and most of the money is in the hands of very less number of population. And India जो है वो आज भुखमरी में भी बहुत ऊपर आ गया है और अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ऊपर आ गया है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के ही रिजल्ट हैं। तो आई थिंक दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, पर एक प्रॉपर एजुकेशन और एक
प्रॉपर अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम दिस थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो थैंक यू. Okay, so guys, this was a very good discussion. Some points, कुछ पॉइंट्स फिर से रिपीट हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि अगर मैं संतोष की बात करूं तो संतोष ने फिर से एक प्लस पॉइंट दिया था दीपक को कि दीपक ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला था. दीपक ने एक अच्छा पॉइंट बोला था तो संतोष ने दीपक का नाम मेंशन करके प्लस पॉइंट दे दिया था दीपक को, +1 हो गया था वो. ओके संतोष, आप विजय की बात को खत्म होने दीजिए, मतलब किसी कोई बोल रहा तो बात खत्म होने दीजिए, है ना, उसके बाद आप बोलिए. विजय, आप ठीक है मल्टीपल टाइम्स आप आ रहे थे, बट आगे मतलब आज तक के डिस्कशन में क्या हुआ है, हम लोग बोलने देते हैं, सभी लोगों को बोलने का पार्टिसिपेशन देते हैं, तो बोलने दीजिए. ऐसा नहीं कि अब आपको बोलना आ गया है तो आप ही बोलते रहेंगे करके, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर. है कि नहीं. सुरेंद्र के पॉइंट्स बहुत अच्छे थे दोनों. साकेत का तो एज यूजुअल इट वाज वेरी गुड पॉइंट्स एंड वेरी गुड कंक्लूजन. विपिन, मैं आपकी इंट्रोडक्शन से क्लियर नहीं था, पता नहीं आइदर नेटवर्क ग्लिच था, आपके पॉइंट्स मुझे समझ ही नहीं आए नेटवर्क ग्लिच के वजह से, या फिर क्या था. इंट्रोडक्शन में मुझे समझ ही नहीं आया, मैं आपके पॉइंट्स क्लियर बोलूं. क्या किसी को आया था? Okay. एनीबॉडी? नेटवर्क इशू था शायद. किसी को आया था क्या, बताइए गाइस. नहीं सर, नहीं सर. यस. वेयर इज रंजीत? रंजीत ये- मेंशन वेरी गुड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हमारे इंडिया की जननी है. एग्रीकल्चर में पूरा लेबर वर्क लगता है. गाइस आप खुद बताइए, आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, यस अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल सही बात है. अब एक चीज और बताइएगा, अगर इंक्रीज पॉपुलेशन होता है, अब जो लेबर वर्क वाले काम है, क्या वो एक क्वालिफाइड आदमी करेगा? नहीं करेगा. समवेयर इट इज आल्सो राइट गुड सर, पॉइंट. नहीं करेगा. समवेयर इट इज आल्सो गुड पॉइंट, राइट. Decrement of quality of life. दीपक ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति है, जितने सारे व्यक्ति है वो 25,000 से नीचे की सैलरी करते हैं. यस, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स. ग्रेट पॉइंट. 90%, ये भी कहा कि 90% लोगों के पास में पैसा नहीं है, 10% लोगों के पास में पूरा पैसा अमाउंट बना हुआ है, बचा हुआ है. गुड पॉइंट, गुड पॉइंट. उसके बाद रिसोर्सेस वाला संतोष, वेरी गुड पॉइंट कि रिसोर्सेस आपके डिप्लीट हो गए. धीरज, you are not someone that you have to disagree. I think so you haven't seen the previous 2 lectures. वहां पे क्लियर बताया गया था कि हमें किसी की बात से डिसएग्री नहीं करना है. इट इज अ ग्रुप डिस्कशन. ओके सर, मैं Please- अगली बार से ध्यान रखूंगा. प्लीज वॉच दैट 2 lectures. एक अभिषेक सर Okay, वाला sir. लेक्चर देखना, और एक जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले सर है, ओके वो लेक्चर जरूर देखना. Okay. रिकॉर्डिंग उसका देखना, ठीक है. कितनी बारीक चीजें, कितने बारीक पॉइंट सर ने बताए थे. ओके. उसके बाद एजुकेशन वाला पॉइंट बहुत सही था. उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है कि हमें 2 बच्चे के ऊपर पैदा नहीं करना चाहिए, ये भी पॉइंट अच्छा मेंशन किया गया था. मुझे ये बताइए, आप लोग जापान, धीरज जी चले गए थे जापान और चाइना पे चले गए थे, राइट. मैं इंडिया में क्या पॉइंट्स आपके कम हो गए थे जो आप जापान और चाइना पे चले गए? तो अच्छा हो गया संतोष ने आपको काउंटर कर दिया. कितने पॉइंट्स है बोलने के लिए, बताइए मेरे को, कितने पॉइंट्स है बताने के लिए? मतलब जापान और चाइना, ठीक है. हाँ, तो एक स्टार्टअप एंड इनोवेशन वाला जो पॉइंट था रंजीत का, दैट वाज गुड. वेयर इज रंजीत? बट रंजीत इज ओनली नॉट देयर. ओके, बाकी एवरीथिंग वाज गुड, मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं लगी, अच्छा पॉइंट था. तो टाइम बॉम्ब में आपके आ जाएंगे, टाइम बॉम्ब में आपके क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? एक आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, दूसरा आएगा रिसोर्सेज स्कार्सिटी, तीसरा आएगा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर बर्डन. ओके, वही आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो पॉइंट्स आएंगे, 1 इज वर्कफोर्स पोटेंशियल, सेकंड इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड है कंज्यूमर मार्केट. ओके, तो ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं, और ऐसे
किसी ने आज एक लाइन नहीं बोली, जैसे एक पिकअप लाइन होती है ना, पिकअप लाइन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग पिकअप लाइन कोई बोल नहीं रहा, मंथन ने बोली थी उसके बाद में किसी ने बोली नहीं, आपने, मैं सोच रहा हूँ कि कोई पिकअप लाइन बोलेगा करके। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। कैसा पिकअप लाइन सर? पिकअप लाइन मतलब मुहावरा, इडियम, प्रोवर्ब। हम दो हमारे दो, ऐसा। हाँ यस, हम दो हमारे दो। सर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगी या फिर मतलब ये तो नहीं लगेगा कि डिस्कशन में पॉलिटिक हो रहा है या फिर शायराना That is अंदाज good. में बैठ गया? नहीं बढ़िया है, आप तो थे ना उस दिन अभिषेक वाले सर, जैसे एक- लेक्चर। यस सर। फिर यस, पॉजिटिव सीरीज का इम्पैक्ट रेफरेंस है, दो बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। तो बट आपने नहीं ऐसा चीज बोला avoid संतोष वो यस पॉइंट, सर। जैसे आप पहले से स्टार्टिंग से ही एक नेगेटिव इसमें थे, मतलब कॉन्स में थे, तो आप फिर पॉजिटिव वाले में नहीं जाना है ना, नहीं नेगेटिव मैं में वो बोल सकता था ना सर, टाइम 2 चिल्ड्रन वाली पॉलिसी में 2 बच्चे हाँ। वाला। बिल्कुल बोल सकते थे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। एंड उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स आपका एक और ऐड हो जाएगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन प्रोस डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड में। ओके, सो क्लियर होगा सभी लोगों को। धीरज, आई होप मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा, जैसे ठीक है आपका ऑल इंडिया रैंक 9 है, यू हैव बहुत अच्छा चांस है आपका सिलेक्शन होने का, बस थोड़ी थोड़ी बातें आप जो है वो मेंशन करिएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे आपने कहा कि आई डिसएग्री, यू आर नॉट समवन टू डिसएग्री, इट इज अ डिस्कशन, इट इज नॉट अ डिबेट, राइट? एंड सर मेरा एक डाउट है हाँ कि यस, हमें स्टार्टिंग से ही एक तरफ रहना है, जैसे प्रोज हो गया, बिल्कुल। कॉन्स हो गया, या फिर हम बिल्कुल। बीच में स्विच कर सकते हैं? नहीं, देखो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आप दोनों साइड ले सकते हो, ठीक है, बट अगर आप स्टार्टिंग से प्रोज में हो तो प्रोज में रहिए, कॉन्स में हो तो कॉन्स में रहिए। ओके सर। दिस विल क्रिएट अ गुड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, ओके, व्हाट इज मीनिंग बाय एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। हाँ श्योर सर, मैं Okay. देख लूंगा एक बार तो। हाँ, जैसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मतलब इज रेप इन द केस ऑफ रेप द पेनल्टी शुड बी डेथ, और द पेनल्टी शुड बी डेथ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है ना। ओके गाइस, सो क्लियर था, बढ़िया था डिस्कशन। आई होप आप सभी लोगों को, आप तो प्रिपेयर हो चुके हो, आप लोगों को जीडी में कोई बाहर नहीं कर सकता। ओके, इतना पूछना है सर। तो मैं जानता हूँ। अब बात है पर्सनल इंटरव्यूज और सर। ग्रुप टास्क लेना है आप लोगों का,